Guys, I'm going to start fresh start basically, the one who were not available the last time. So do let me know once my screen is visible to you guys. Okay. That what is the window? That window is there. Okay, I'm sharing my screen. It is visible to you guys. Yes, sir. Great, great. Okay. So let me move to the presentation thing. Okay. Can you see my PPT here? Yes. Yes, sir. So guys, I am revising that Java basics for all. One thing I would like to clear: this is I have written in Java basics, but these are the basic things in any language. It doesn't matter. You are from C, C++, Java, Python, Node.js, anything. These are the basic programming things. All right. So let me quickly jump into the first identifier. Okay. So anyone who attended the class can tell me the what is identifier? No. Okay. Identifier Hmm. which come in class uh, constant and variable, which are used in class constant or variable. Okay. Okay. Anyone else? Sir, these are used for these are all reserved words used for naming a class, variable, constant, keyword. Okay. Okay. All right. So first of all, when I ask na identifier, so the one who does not know that what is identifier. So like in programming, you have to be very careful. आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि when you don't know कि कोई चीज़ नहीं आए, so just try to break it down. Identifier, if I say कि चलो ऐसे क्या होता है, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट करो तो पहचानना, पहचान करना. आइडेंटिफायर इज द पहचान कराने वाला, राइट? करेक्ट. एंड दैट थिंग क्लियर्स आइडेंटिफायर. अब इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ठीक है, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी हमको मालूम चला कि भाई मेथड होते हैं, फंक्शन होते हैं, क्लासेस होती हैं, राइट, वेरिएबल्स होते हैं. So the one who can identify class, the one who can identify the variable, the one who can identify the method, the one who can identify the variables, nothing is a identifier. Identifier जावा में और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऐसा कीवर्ड एज प्रणोति सेट की वो प्री डिफाइंड है, दैट इज द थिंग दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई द मेथड, क्लासेस और वेरिएबल्स, राइट? ये पॉइंट क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. सेकेंड थिंग, वी हैव रूल्स. रूल्स हर जगह लगते हैं, राइट? सो टू, अगर आपको आइडेंटिफाई डिफाइन करना है कि भाई ये क्लास नेम है, ये वेरिएबल नेम है, ये मेथड नेम है, तो जावा ने कुछ सेट ऑफ रूल्स दे रखे हैं कि भाई ये फॉलो करो. अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो या तो आपको मैं एरर दूंगा या फिर वो गुड प्रैक्टिस में नहीं आएगा. इफ़ यू सी, तो आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, जो कि भी आप धीरे धीरे प्रोसेस में आओगे तो यू विल गेट टू नो इट. But the point is, you need to understand we have identifier to identify the our functions, classes और variables, right? अभी ये जो रूल्स हैं वो रूल्स आप करते करते सीखोगे, सो यू डोंट नीड टू क्रैम इट. ओके. तो आइडेंटिफायर बहुत छोटा चीज़ है, क्लियर है. नाउ जर्नी स्टार्ट्स हेयर फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग. ओके. वेरिएबल, ठीक है. अब जो लास्ट क्लास में नहीं थे, टू टेल देम, आई थिंक यहाँ पे प्रणोति और आई थिंक और भी कोई अवेलेबल था. सो इफ़ दे कैन टेल व्हाट इज़ वेरिएबल. It holds the value of data types. It has size and size a type and a type variable. करेक्ट. And its value can be changed. करेक्ट. Yeah. करेक्ट. If it's not conflict. ग्रेट, ग्रेट गाइस. यस, वेरिएबल को अगर मैं जो अभी लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए बताता हूँ. वी all have solved the programming like the mathematical questions. So let me take it like x plus y minus 10 is equal to 20. Let's say this is our
मैथमेटिकल इक्वेशन, राइट? एवरीवन हैज सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, करेक्ट? नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज एक्स एंड वाई हेयर? व्हाट इज एक्स एंड वाई हेयर? अभी भूल जाओ कि प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल बात कर रहा हूँ. एक्स और वाई क्या है? एक्स वाई इज समथिंग दैट होल्ड वैल्यूज. इस एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, राइट? 10 20 हो सकती है, विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, करेक्ट? सो इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड द variable is something which hold the value, correct? That is the variable. Now that value could be any type. अब यहाँ पे मैं बोलूँ अगर आपसे कि x क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि सॉल्व करके हमें मालूम चलेगा कि इस वैल्यू क्या हो सकती है. इफ़ आई से कि x की वैल्यू 20 हो सकती है और इसकी वैल्यू 20.5 भी हो सकती है और इसकी वैल्यू 0 और 1 भी हो सकती है, राइट? अगर मैं ऐसा कहूँ तो मेरा कहना गलत तो नहीं है? यस और नो? Yes, sir. करेक्ट. ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किए, एक्स एंड वाई द वेरिएबल्स विच होल्ड द वैल्यूज, दैट्स वाई देयर वेरिएबल्स. वेरिएबल मतलब क्या, जो वेरी कर रहा है, राइट? नॉट द फिक्स्ड थिंग. नाम से ही कई चीज़ें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लियर हो जाती हैं, जस्ट यू हैव टू थिंक. सो एक्स एंड वाई वेरिएबल्स इन दी इक्वेशन, सेम थिंग वी हैव वेरिएबल्स इन दी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड. अगर आपको कोई चीज़ डिफाइन करना है जिसकी वैल्यू हमें फेच करके लानी है, ये चीज़ें वेरिएबल्स में आती हैं. ओके, नाउ लेट मी गो टू द स्लाइड जहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखा हुआ है द फिगर. लाइक अ वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कप और अ कंटेनर, इट कैन होल्ड समथिंग, राइट? यही हमने डिस्कस किया. इट हैज़ अ साइज एंड अ टाइप, करेक्ट? तो फिगर में आप देख रहे हो कि एक बड़ा ग्लास है, एक छोटा ग्लास है, ठीक है? इसमें हम इंट ए इज इक्वल टू 123 डाल रहे हैं. इंट एक डेटा टाइप है जो हम पहले जान पढ़ चुके हैं. ए इज़ अ वेरिएबल एंड 123 इज़ द वैल्यू. ओके, क्लियर है? तो बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं. Yes, sir. ऑलराइट, अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ था इंट ए इज इक्वल टू 23 जो लिखा हुआ था, राइट? अभी मैंने यहाँ पे बोला कि जो x है, लेट मी डू इट x, ओके? कि जो x है इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी 20, इट कुड बी 20.5, इट कुड बी 0. सो एवरी क्वेश्चन, ये जो इंट x इक्वल टू 23 लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट है, ओके? इन दिस स्टेटमेंट इफ आई डिवाइड इट, सो इट हैज़ 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज, गाइज, व्हाट इट इज? Data type. डेटा टाइप. डेटा टाइप. Second one, what it is? Variable. Variable, right? These are variables. And third one is the value. What variable holds? Okay? I think इसमें कोई confusion नहीं होगा. Now come to the data type. अभी मैं एक बात को रिपीट कर चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 20 भी हो सकती है, 20.5 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है. इट कुड बी एनीथिंग. क्यों? ओके, इन रियल वर्ल्ड, है ना, अगर मैं आपसे किसी भी चीज़ एग्जांपल लूँ, ठीक है, कि लेट्स से मैं अगर खाने की बात करूँ, फूड आइटम्स की, सो देयर आर सम स्वीट्स, है ना, कुछ खट्टे हैं, मीठे हैं, कुछ कड़वे हैं, राइट? इसी तरह हमारे डेटा के टाइप हैं, जैसे फूड टाइप हैं तो डेटा के टाइप हैं. वो आपके इंटीग्रल नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कंटेन कर सकते हैं, या फिर वो डेसिमल नंबर कंटेन कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा होगा दशमलव में नंबर होते हैं, 1.2 2.3 फ्रैक्शन में होते हैं, राइट? और 0 1 भी हो सकते हैं, या फिर कोई बड़े नंबर भी हो सकते हैं. तो इसको जावा में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन्होंने क्या किया कि एक सेट ऑफ डेटा टाइप दे दिया. तो इफ़ आई से कि इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स विच हैव द फिक्स वैल्यूज़. मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ थोड़ा सरल भाषा में, कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स रेंज होती है. एक्चुअली वो क्या होती है, अगर मैं बात करूँ इंटीजर नंबर्स की, लाइक 1, ठीक है, ये क्या है, होल नंबर्स हैं, राइट? प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हम इनको डिफाइन करते हैं इंट से. इंट इज़ नथिंग बट अ इंटीजर, द फर्स्ट डेटा टाइप. अगर मैं इसमें डेसिमल लगा देता हूँ, सो इट कुड बी
a float. Okay, it could be a float. और अगर ये नंबर बहुत बड़ा होगा so it will come go to the double. तो ये याद नहीं करना है, जस्ट यू टू अंडरस्टैंड. ये धीरे धीरे आप जब यूज़ करोगे, यूज़ करते करते आपको मालूम चल जाएगा कि इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, स्ट्रिंग होता है, कैर होता है, लॉन्ग होता है, बाइट भी है आपका. ठीक है, ये सारी चीज़ें डेटा टाइप में आती हैं. आई थिंक इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, है ना. हमें समझ में आ चुकी है मोटी मोटी चीज़ कि वेरिएबल कहाँ पे आता है, डेटा टाइप कहाँ पे आता है, वैल्यू कहाँ पे आती है. ऑल सॉर्टेड गाइस? Yes, sir. ठीक है. अब यहाँ पे डेटा टाइप में मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोग को कि एज आई ऑलरेडी मैंशन कि लैंग्वेज में पहले से प्री डिफाइन होता है. तो जो प्री डिफाइंड चीज़ होती है ना, वो जावा वर्ल्ड में आप लोग की नया वर्ड है कि प्रिमिटिव. प्रिमिटिव को आप ऐसे समझो कि प्री डिफाइंड, जो चीज़ पहले से बता जा चुकी है या पहले से लिखी हुई है, दैट इज़ प्रिमिटिव टाइप. ठीक है. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर, इफ यू सी, primitives are like the cups of coffee house. They come in different size and each has a name like small, medium. Let me go here. We have a byte, we have a short, we have a int और different साइज के हैं. अगर आपको छोटी वैल्यू रखनी है, कंटेन करनी है, यू विल गो टू द बाइट, देन यू विल गो टू द शॉर्ट. उससे बड़ी है, अगर उससे बड़ी तो आप इंट में जाओगे, उससे बड़ी तो आप लॉन्ग में जाओगे. दैट फॉर द होल नंबर्स. डेसिमल के लिए क्या चलेगा? डेसिमल के लिए आप जाओगे फ्लोट में, फ्लोट से फिर जाओगे डबल में. ठीक है. तो ये चीज़ें समझने की हैं कि हमें, हाँ, ये जो पहले से डिफाइंड है इंट बाइट, कोई पूछेगा भाई क्या होते हैं, ये होते हैं डेटा टाइप्स. करेक्ट. कैसे होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं. प्रिमिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये पहले से प्रीडिफाइंड है. ठीक है, यू कांट चेंज इट. अब एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इट टेक्स 1 बाइट, इट टेक्स 2 बाइट एंड दिस टेक्स 4 बाइट्स. यहाँ पे आप जाओगे तो रेंज में यहाँ पे डिफाइन कर रखी है पहले भी. ठीक है. अब यहाँ पे ये याद करने वाली नहीं है, ये यूज़ करते 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 दिमाग में बैठेगी. बट द पॉइंट इज़ कि ये जो प्री डिफाइंड या प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, इनकी एक रेंज होती है. आप इंट में कोई वैल्यू सिर्फ इस रेंज तक ही रख सकते हो. ठीक है. अगर इससे बड़ी वैल्यू है कोई तो वो लॉन्ग में जाएगी. लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ कि स्टॉक मार्केट है. ठीक है. स्टॉक मार्केट में तरह तरह के अकाउंट्स होते हैं. करेक्ट. या फिर बैंक अकाउंट में करेंट अकाउंट होते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं. तो वो पीछे क्या चलता है? पीछे भी तो कोडिंग चल रही है. जो डेवलपर ने कोड लिखा है कि भाई अच्छा ठीक है, अगर मार्केट की वैल्यू ये हुई ना, अगर इसका प्राइस ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो इसको सेल करना है, बाय करना है. ये क्या है? लॉजिक चल रहा है पीछे. अब वो सारा क्या है? डेटा ही तो है. एवरीथिंग इज़ डेटा. अच्छा, एक चीज़ मैं मतलब आप लोग ताकि रिलेट कर सको रिवर्ट से एग्जांपल लेना था. ओके, यहाँ पे डेटा से क्या समझता है कोई भी अपना ओपिनियन दे मुझे कि हाँ डेटा यार ये होता है. मतलब डेटा को कैसे देखते हो आप लोग? एनीवन, कोई भी अपनी एक भाषा में तरह कुछ भी. मतलब एक तरह से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन. पर्सनल इन्फॉर्मेशन डेटा. ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट. क्या, डेफिनेटली वी कैन से द टाइप. यप. और कोई भाई, क्या है डेटा? ठीक है. अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि डेटा इज़ एवरीथिंग फॉर नाउ, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं जो डेटा ना हो टुडेज इन नाउ डेज. ठीक है. एवरीवन हैज़ बैंक अकाउंट. ऐसा है कोई किसी का बैंक अकाउंट ना हो यहाँ पे? नहीं है ना. सबके पास बैंक अकाउंट है. ठीक है. सबके बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे पड़े होंगे. कभी आपने सोचा है कि अगर आपके अकाउंट में लेट्स से कि 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है, क्या वो 10,000 रुपये इन एक्चुअल आपके अकाउंट में कहीं पे 100 की या 500 की या नोट रखी हुई है क्या? ऐसा है क्या? No, sir. नहीं, नो नहीं सर. है. राइट. वो क्या है? डेटा है. लेट्स से आप में से कोई कल को बहुत बड़ा एकदम डेवलपर बन गया और उसको एकदम हैकिंग अच्छे से आ गई एंड ही और शी फाउंड आउट, कुछ उसने हैक फाइंड कर लिया, लूप होल फाउंड कर लिया किसी भी लेट्स से एसबीआई वाले में. एसबीआई की साइट पे जा करके या फिर उनके सर्वर में, बैंक सर्वर में जा करके उसने लूप होल देख लिया कि अच्छा ये इशू है एंड उसने अपना अकाउंट एक्सेस करके उस अमाउंट को 10,000 को 1,00,000 कर लिया और एटीएम से आके पैसा निकाल लिया. आप पकड़े जाओगे बाद में डेफिनेटली, क्योंकि ट्रांजेक्शन दिखेगी. राइट. बट फॉर अ मिनट आपने क्या किया? आपने अपना डेटा 10 टाइम्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अपने पैसा बढ़ा लिया. करेक्ट है कि नहीं?
गाइस, यस और नो? Yes, sir. ठीक, Yes. एवरीथिंग वॉट एवर यू सी इन योर रियल वर्ल्ड, आप अभी मुझे देख रहे हो, यू कैन थिंक कि ये भी एक डेटा ही है। वी आर डेटा ना, वी ऑल आर डेटा। भारत की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, ये क्या डेटा ही तो है कि आज के टाइम पे कितने नए कितने लोग मरे, कितने लोग पैदा हुए, एवरीथिंग इज़ डेटा। नाउ थिंक इन दिस टर्म कि भाई अब आपके लिए आज से आने वाले टाइम में आपके लिए सब कुछ डेटा होगा, ठीक है, सब कुछ डेटा ही है। अब डेटा के बारे में मैंने ये जिक्र क्यों किया, इसलिए किया, लेट से अगर मुझे 2 लोग का डेटा रखना है, ठीक है, तो मैं इंट ले लूँगा, नंबर ऑफ पीपल इंट 2, करेक्ट। लेकिन मेरे पास अगर 10 अरब लोग हैं तो वो इंट वाली रेंज में नहीं आएंगे, वो जाएंगे कहाँ पे, लॉन्ग में। या फिर अब देखो, जैसे कि एग्जांपल लिया था मैंने लास्ट टाइम पे कि फ्रेंड्स वाली बात है, राइट। अब जैसे कि मान लो विवेक है, लेट्स विवेक है ना, विवेक की 2 गर्लफ्रेंड हैं, तो जो 2 गर्लफ्रेंड है ना वो इंटीजर हैं, ठीक है, कोई हाफ गर्लफ्रेंड नहीं होती इन रियल वर्ल्ड, ठीक है, कि 2.5 भाई एक गर्लफ्रेंड पूरी, एक आधी गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, गर्लफ्रेंड को दोनों को टाइम ये ऐसा हो सकता है फ्रैक्शन में दे सकता है, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा फ्लोट में, डेसिमल में, कि भाई एक को आधे घंटे दे रहा है, एक को 1.5 घंटे दे रहा है, 1.5 0.5। तो डेटा आप देखोगे हर जगह है, ऐसा नहीं है कि डेटा को आप रिलेट नहीं कर सकते हो, यू कैन रिलेट इट, बट यू हैव टू थिंक लाइक दिस, ऑल राइट, कि हमारे पास इंट था तो फ्लोट क्यों, लॉन्ग क्यों आ गया, ठीक, लार्ज वैल्यूज, मेक सेंस गाइस, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे हमें अभी 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, आइडेंटिफायर क्लियर हो चुका है, वेरिएबल क्लियर हो चुका है। अब आते हैं कांस्टेंट में, ठीक है। कांस्टेंट सिंपल टर्म्स में एक ऐसी चीज़ जो बदले ना, राइट। अब हमें अगर कांस्टेंट डिफाइन करना है, सो इन जावा देयर सेट ऑफ रूल्स, वो हम देख लेते हैं क्या है कांस्टेंट्स, कि भाई इट सेज आपको कुछ भी कांस्टेंट डिफाइन करना है, सो यू हैव टू यूज़ दिस कीवर्ड फाइनल, राइट। ये हमने पढ़ा था कि हमें फाइनल कीवर्ड यूज़ करोगे। अगर यहाँ पे मैं जाऊँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था इंट x इज इक्वल टू 23, करेक्ट। अभी ये वेरिएबल है, इंट x इज इक्वल टू x इज अ वेरिएबल नाउ, करेक्ट, ये हमने देखा था। बट एज सुन एज आई एड फाइनल बिफोर इट, नाउ इट विल बिकम कांस्टेंट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फाइनल कीवर्ड। इसको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, बट समझना है कि हाँ अगर फाइनल लग गया है तो कांस्टेंट बन जाता है। अब ये कांस्टेंट में चाहिए क्यों होता है, एनीवन कैन टेल मी कि यार कांस्टेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। आप कोडिंग छोड़ दो, आप प्रोग्रामिंग छोड़ दो, ठीक है, आपको कांस्टेंट अगर आपसे पूछा जाए कि यार कि कांस्टेंट क्यों चाहिए होता है, क्या यूज़ केस हमें लाइफ में, क्या यूज़ केस है, कहीं भी देखा हो, मैथ्स में देखा हो, फिजिक्स में देखा हो, या फिर अपने घर में देखा हो, कहीं भी तो देखा होगा, क्यों है कांस्टेंट, क्यों चाहिए होता है। कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी चलती है, राइट, एक वेरिएबल स्पीड में गाड़ी चलती है। भाई कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो यार इसके लिए, आई वॉन्ट टू हिट आउट कि आप लोग की थिंकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें तरीके से बताऊंगा। सो यू गाइस शुड ट्राई, व्हाट इज कांस्टेंट। So constant is the fixed value, like we get the 440 voltage in electricity, which is constant. We can't exceed from that Yes. because, like, if it will be exceeded, we can face electrical problem in our appliances. What the last one, what did you say? Electrical appliances or electronics. हाँ, they have the MRP, एक फिक्स प्राइस they have, right? वाई दे हैव फिक्स प्राइस, क्योंकि भाई कल को आ करके कोई ये ना बोले कि भाई तुम 10 रुपये में दे रहे हो, मैं 12 में दे रहा हूँ, तुम 9 में दे रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, वी आर रिजॉल्विंग द एम्बिग्विटी, दुविधा, ठीक है, किसी भी एक ऐसी जगह पे कि जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, दैट वी नीड अ फिक्स थिंग। सेम थिंग आपकी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में होती है। आप चाहते हो कि भाई एक चीज़ थ्रू आउट द कोड, थ्रू आउट द प्रोग्राम या थ्रू आउट द माई एप्लीकेशन, है ना, फिक्स रहे, बदले ना, चेंज ना हो किसी भी यूज़र के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। सो यू मेक इट कांस्टेंट, ओके, दैट्स द यूज़ केस ऑफ इट। डेफिनेशन आपको मालूम है, दैट्स वेरी गुड, बट इफ़ यू नो द यूज़ केसेस यू आर एक्सेलेंट, ओके। सो डेफिनेशन के साथ साथ यूज़ केस समझना बहुत ज़रूरी है, ओके।
ठीक है, अब हम आते हैं चौथे पे विच इज़ कीवर्ड्स। ठीक है, अब कीवर्ड्स को मैं ऐसे बताता हूँ। कीवर्ड्स, अच्छा, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज़ कीवर्ड? डेफिनेशन से अलग कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखो मैं बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पे कोई यूपी ईस्ट से होगा, है ना, कोई किसी और स्टेट से हो सकता है। हर एक स्टेट के अपने अपने लैंग्वेज है ना। अगर मैं कानपुर की बात करूँ, है ना, तो कानपुर में कुछ चीज़ें फेमस है ना, कि उनकी लैंग्वेज, है ना, चलियो या ऐसे करके, या फिर मुंबई में ओ भाई ऐसे करके जो भी लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग, वो फिक्स हैं, है ना। आप हरियाणवी सुन करके, है ना, कठे जा रहा ऐसे ऐसे करके, या राजस्थानी है जो भी है, आप आइडेंटिफाई कर लोगे, राइट, कि यार ये राजस्थानी है, यार ये यूपी का, लखनऊ का है, ये क्या है, वो क्या है, वो कीवर्ड्स हैं उनके, करेक्ट। ठीक इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कीवर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं फॉर द पर्पज़। वो क्या हो सकते हैं? इफ़ है, एल्स है, इंट जो आप देख रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट, ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इनको बस समझना है कि ये कीवर्ड्स हैं और क्यों हैं। इनके यूज़ केस जब हम यूज़ करेंगे तो हम समझेंगे। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स और थिंग, दे हैव सम स्पेशल मीनिंग। ओके, क्लियर है क्या यहाँ तक? ये कीवर्ड्स हैं हमारे। ठीक है, ये चार्ट है, इसमें इतना जोर नहीं देना है। ठीक है, धीरे धीरे यूज़ करते करते ही हम लोग सीखेंगे इसे। ठीक है, अभी हमारा आइडेंटिफायर हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, वेरिएबल हो गया है और डेटा टाइप्स हो गया है। ठीक है, कोडिंग कन्वेंशन भी मैंने बताया था, बट बिफोर गोइंग इनटू इट, इन 5 चीज़ों में किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं है या है तो बताओ। मुझे ऐसा लगता है मैं 5 तक गिनती गिनूँ, 5 4 3 2 1, कोई नहीं बोलेगा तो मैं समझूंगा हाँ। ऐसा कर लूँ क्या? Yes, sir. ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द कोडिंग कन्वेंशन थिंग, बट बिफोर इट एक टेस्ट छोटा सा था जो कि मैंने आप लोग से पहले भी बताया था। ठीक है, फटाफट जो आज लास्ट क्लास में थे नहीं उनके लिए फटाफट कर लेते हैं। डिक्लेयर अ वेरिएबल इन विच स्टोर एज ऑफ एम्प्लॉय, चूज़ द बेस्ट वे। ठीक है, अगर हमें एम्प्लॉय की एज रखनी है तो किस तरह का डेटा टाइप चूज़ होगा? दिस वन, क्योंकि किसी की एज तो करोड़ों में नहीं हो सकती, हज़ारों में नहीं हो सकती। ठीक है, तो उस रेंज में आएगा तो हम चूज़ करेंगे इंट। ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग में ले लोगे तो एरर दे देगा आपको, गलत हो जाएगा, नहीं, बट वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट इन जावा व्हाट वी यूज़? B or final. फाइनल, यस, वी यूज़ फाइनल। ओके, अब वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए इसमें से कुछ चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, बट मैं फिर से बता देता हूँ कि जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो, नॉट डिफाइन, डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, राइट। अब इंडिया में, है ना, अब पहले तो चलो राम कृष्ण ऐसे नाम रखते थे, अब आज के टाइम पे इंडिया में रॉकी ऑकी सब चलने लग गए, राइट। बट अगर मैं उस लिगासी पे जाऊँ कि भाई अगर एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा है तो उसका नाम ब्रूनो इस तरीके से ही होगा। ठीक है, इंडिया का है तो रमेश गणेश सुरेश ऐसे होगा। ठीक उसी तरह कोडिंग कन्वेंशंस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो वेरिएबल में उसने कहा हुआ है जावा ने कि भाई देखो, अगर आपको करना है, ठीक है, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो वेरिएबल में आपको कैमल केस लेके चलना है और मेथड में भी आपको कैमल केस लेके चलना है। मेथड्स आर नथिंग बट फंक्शंस, उस पर हम आते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इंट को देना चाहूँ माई नंबर, तो एम स्मॉल होगा, ठीक है, वाई स्मॉल होगा, और जो अगला वर्ड आएगा वो कैप से स्टार्ट होगा, माई नंबर। ओके, ऐसा नहीं कि अगर आप ये लिख दोगे तो एरर दे देगा, बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, और हमें गुड प्रैक्टिस फॉलो करनी है। ये कहता है कि आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप 1 2 3 से कोई कीवर्ड स्टार्ट नहीं होगा, किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा, एरर देगा आपको इसमें। लेकिन आप अंडरस्कोर यूज़ करते हो, आप कर सकते हो। ये कुछ कोडिंग कन्वेंशंस हैं, इन्हें रटना नहीं है, प्रैक्टिस में आएगा, बट प्रैक्टिस में आपको हमेशा यह प्रैक्टिस करनी है, कैमल केस वाली। साउंड्स गुड? आई थिंक यस। ठीक है, विच वन इज द करेक्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन? चूज ऑल दैट अप्लाई। दिस इज करेक्ट, यस और नो?
Yes, sir. Okay. This one, Yes, sir. this one, No, sir. No. this one, Yes, Yes. sir. Yes, sir. this one, E, No. no, No, sir. F, No, sir. no. Yes, sir. Why? This starts with the special keyword, so it is not right. Correct? This is not right. G, No. no. H, No. 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 Why? Because this is a keyword. Okay? Boolean and yeah. ओके ठीक है जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी हैव अ ओके मैं इस तरीके से बताता हूँ ज़्यादा बेटर समझ में आएगा इफ़ आई डिवाइड डेटा टाइप ना लाइक दिस डेटा टाइप छोटा सा रहा है इसको मैं बड़ा कर देता हूँ डेटा टाइप सी let me just copy paste it so there are two kind of data types एक तो हमने देखा वो कौन सा है anyone can tell me Primitive data type. primitive other one is लोग इसको नॉन बोल देते हैं Non-primitive data type. Non-primitive रेफरेंस बोल देते हैं Reference data. और यूज़र डिफाइंड बोल देते हैं कभी कुछ भी नाम से सुनो तो कंफ्यूज नहीं होना समझना कि यही चीज़ है ये रूप अनेक है नाम एक है उसका ठीक है वो क्या है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप प्रिमिटिव में हमें क्लियर है क्या होता है इंट फ्लोट लॉन्ग डबल जो कि प्री डिफाइंड है अच्छा एक चीज़ और जैसे मैंने कहा कि प्री डिफाइंड है तो अभी अब मैंने आपको दिखाया ना कि इंट की रेंज होती है ठीक है 2 टू द पावर आई गेस -2 टू द पावर 31 से 2 टू 31 -1 और डिपेंड करता है बिट्स पे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट की रेंज अलग होगी प्रिमिटिव डेटा टाइप की वो डिपेंड करता है कि वो 2 बाइट का है 4 बाइट का है अभी अगर मैं इस पे दिखाऊं आप लोग को मैंने कहाँ पे दिखाया था यहाँ पे आप देख रहे हो इंट यहाँ पे 4 बाइट का है किसी लैंग्वेज में अगर 2 बाइट का है तो इसकी रेंज कम हो जाएगी तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कर रहे हो ठीक है ये फिक्स नहीं है कि नोड जेएस में भी यही हो रहा है या सी प्लस प्लस में भी यही इंट की रेंज यही है ये चेंज होती है ओके जावा में यही है लेकिन 2 बाइट का आपका शॉर्ट है इंट आपका 4 बाइट का है लॉन्ग आपका 8 बाइट का है फ्लोट आपका 4 बाइट का है डबल आपका 8 बाइट का है ठीक Sir. अब आता हूँ मैं यहाँ पे अब जो नॉन प्रिमिटिव है या रेफरेंस है या यूज़र डिफाइंड है ये जावा में अभी मैंने पहला प्रोग्राम लिखवाया था आप लोग को याद है जिसमें कि हमने एक ऐसे क्लास लिखी थी लेट्स से मैं यूज़र लिख देता हूँ यूज़र ठीक है इसके अंदर अपना एक मेथड हो गया ठीक है और मान लो मैं इसके अंदर इंट एक्स और कैर डेटा ऐसे करके लिख देता हूँ ठीक है लेट मी जूम या ओके दिख रहा है ये जो क्लास यूज़र है ये तो मैंने लिखी ना भाई यस और नो मैंने लिखी है और Yes, ये sir. मेरी हो Yes, sir. यूज़र डिफाइंड दैट इज़ नॉन प्रिमिटिव रेफरेंस और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है ये कैसा है ये यूज़र टाइप का डेटा है समझ में आ रही बात अगर मैं कोई चीज़ खुद से डिफाइन करूं ठीक है आर्टिफिशियल नाम सुना है एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं चाइना ने क्या करा था बीच में कि आर्टिफिशियल रेनिंग कराई थी राइट हमारे पास क्या है नेचुरल रेनिंग होती है बट उन्होंने आर्टिफिशियल करा दी तो दैट इज़ जो आर्टिफिशियल रेनिंग है वो आपका यूज़र डिफाइंड है वो नॉन प्रिमिटिव है वो रेफरेंस है और जो भगवान करा रहे हैं कि मतलब नेचर करा रहा है वो प्रिमिटिव है इसको ऐसे समझो आप तो अब जो क्लास यूज़र आपने लिखा या आप जितनी भी क्लासेस लिखोगे वो आती हैं यूज़र डिफाइंड और आप लिख रहे हो या फिर जावा ने लिख के दी हुई हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा समझने में बट फॉर नाउ आप इसको समझो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप या रेफरेंस ठीक है अब मैं यहाँ पे अच्छा इतना क्लियर है क्या क्योंकि अब जो मैं बात बोलूँगा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अभी ला सकता है क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है ठीक है Yes, अगर sir. कन्फ्यूज़न होती है किसी को भी तो मुझे बताना आप ठीक है मैंने आप लोगों को JDK के अंदर जा कर के java.long पैकेज में कुछ आप लोगों को क्लासेस दिखाई थी स्ट्रिंग
फ्लोट, लाइक दिस, ऐसी क्लासेस थी। एक इंटीजर क्लास थी ऐसी, फ्लोट थी, डबल थी, यस और नो, थी ना। जावा yes. में क्या हो जाता है कि इस चीज़ को कह देते हैं रैपर क्लास या नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, मैं इस चीज़ पे इतना जोर अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमारा अगला स्टेप है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कि हमें इफ़ एल्स लगाना, लूपिंग लगाना आ जाए। ठीक है, बट ये चीज़ अभी के लिए मैं स्टार करके छोड़ दे रहा हूँ कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं इस चीज़ को आप लोग को डीप में समझाऊंगा। बट अभी के लिए आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो तरह के डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं रेफरेंस वाले में इतना इसको मैं स्लाइड को छोड़ूंगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था कि कन्फ्यूज़न हुआ था लोगों को। ठीक है, वो प्रैक्टिस में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि डबल इक्वल और इक्वल ऑपरेटर क्या होता है। तो चीज़ें रटने के बजाय समझ में आए, खुद से आए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा, सबसे पहले कभी अभी तक इसमें से कितनों ने खुद से प्रोग्राम लिख लिया एक बार, इवन हेलो वर्ल्ड या पहला प्रोग्राम? लिखा है किसी ने? ओके, हैंड रेज किया प्रणोति ने, दिव्यांशी ने। किसी को डाउट है क्या? नो, ओके, गुड, ठीक है। No, sir. Anyone else that who still struggle with the writing the program like the first class? अभी नहीं लिखा होगा, राइट, आई गेस। ओके, ठीक है। यार ये बताओ, आपके सिस्टम में, ठीक है, जेडीके इंस्टॉल किया किसी ने अभी तक? Yes, sir. अच्छा, एक नहीं किया क्या? Yes, इंस्टॉल sir. कर लिया इंस्टॉल, ग्रेट। पहला प्रोग्राम लिखा क्या? क्लास बनाई क्या? एक बार ट्राई किया अपनी तरफ से? Yes. Yes, sir. कर ली ट्राई, ओके। अच्छा, कितनों ने ट्राई नहीं किया मुझे एक बार ये बता दो आप, थोड़ा सा मैं सेम पेज पे आ जाऊँ। अच्छा, ईशा ने ट्राई नहीं किया है, प्रणोति ने ट्राई नहीं किया है, दिव्यांशी ने, पलक ने ट्राई नहीं किया है। ठीक है, कोई इशू आ रहा है क्या जेडीके इंस्टॉल सेटअप करने में किसी को, या सिस्टम का इशू है या फिर क्या है, वो मुझे बताओ एक बार। हाँ, एक्चुअली मैं अभी घर गई हुई थी तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था अपना। अब मैं आई हूँ आज तो फिर आज अच्छा, करूँगी। एक्सेस मतलब लैपटॉप एक्सेस नहीं था आपके पास, ठीक जी है। जी जी। आप ईशा, आप जेडीके इंस्टॉल करके अगर इशू आता है, मैंने ऑलरेडी लिंक भेज रखा है, ठीक है। अच्छा, विंडोज़ हो या मैक हो, यूनिक्स हो, किसी भी तरीके से उस पर स्टेप्स दिए हुए फॉलो करना आप। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ग्रुप पे जस्ट डू लेट मी नो, ठीक है। ओके। पलक, आपका क्या कॉस्ट था, आप क्यों नहीं कर पाए सेटअप? सर पेपर चल रहा है फाइनल। अच्छा, एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके भी? ओके, एग्ज़ाम कब ओवर होंगे आपके फिर? 22 को। 22 को, ठीक है, Yes, sir. ओके। और प्रणोति आपका? सर मैंने कर लिया है, अच्छा, बट हम्म, मेरे कंपनी वाले लैपटॉप में थोड़ा वो लोग कह रहे थे कि भी ऑडिट होगा तो यू डोंट हैव टू इंस्टॉल, तो वो सब। तो हम ये पूछ रहे थे कि ऑनलाइन कंपाइलर में जो आप करवाएंगे जैसे सीपी वगैरह, तो उसमें प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। मैं वही बोल रहा था, फिर हम मीन थोड़े वाइल। दिनों बाद उसमें हाँ, कर लेंगे। आप मीन वाइल क्या कर सकते हो, चाहे पलक आप भी, इतना टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर लो, ठीक है। यस पलक, आपने हैंड रेस किया है, वो बताइए। सर वो पहले ही है, अभी नहीं होगा अच्छा, गलती से। दिव्यांशी आपका? तो सिस्टम इशू, अभी सिस्टम प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। क्या समझा नहीं मैं, क्या नहीं हो पा रहा है? सर आई डोंट हैव लैपटॉप अच्छा, एंड लैपटॉप कॉलेज का इशू है, ओके। है। यार जो लैपटॉप इशू है जिनके ना, उनको तो यार मतलब ऑप्शन नहीं है ऐसा कुछ अभी कि वो या तो वो खुद में ही कंपाइलर बने, जेवीएम बने, खुद में ही मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग लें कि कोड कॉपी पेन पे कोड करें, ओके, उसमें प्रैक्टिस करें। दैट्स द थिंग आई कैन टेल, ओके। एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट अपने बना के रखें, ठीक है गाइज।
अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहले यहाँ से। ठीक है, अभी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मैं अगर इसका आंसर में सही मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर नेक्स्ट स्टेप में मूव कर जाऊँगा। कैन यू सी द कोड? लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस। ये बेसिकली डबल इक्वल का है। लेट मी ड्रॉप इट, अभी मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, मैं सीधा आता हूँ सिक्वेंशियल पे और कंडीशन पे। यस की बात पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू हैव सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूपिंग। अभी जो हमने देखा वो एक तरीके से ये समझो कि कोडिंग, जैसे कि ABCD थे, एक वर्ड लिखने के लिए दीज वर लेटर्स। ठीक, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज़ द लॉजिक क्रिएशन। ठीक, जो हम मेन फंक्शन में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ठीक है, आई थिंक मैंने फर्स्ट क्लास में ये चीज़ आप लोग को बताई हुई थी। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ कि एक सिंपल प्रोग्राम, एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को किसी को a + b का होल स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या होती है? A square plus राइट, a² + b² 2AB. + 2ab, राइट। नाउ लेट्स से ये चीज़ आपको प्रोग्राम से करानी है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि आप लोग को दिखे। ठीक, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई, ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ। अब ये जो लाइन है, दिस a² + b² + 2 × ab 2ab, ये चीज़ आपको प्रोग्राम से करवानी है, कोड करवानी है। ठीक है, ये तो आपको कॉपी पेन पे आप कर लोगे, a की वैल्यू दूंगा, b की वैल्यू दूंगा। लेट्स से a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो आप कर लोगे इसको 10 10 20 20 का स्क्वायर आप निकाल लोगे 400, राइट। कर लिया हमने। अब ये चीज़ हमको कोड करवाना है। कल को अगर a की वैल्यू मैंने दे दी बड़ी सी, लाइक 2000, और b की वैल्यू दे दी मैंने 3064, तब तो आप नहीं कर पाओगे। वहाँ पे आपका पिक्चर में आता है प्रोग्राम करेगा वो आपका, राइट। तो अब यहाँ पे जो मैं लिखूँगा स्टेटमेंट्स कि भाई a × a करो, ठीक, इसकी वैल्यू, और क्या करूँगा मैं, b × b करूँगा, राइट। तीसरा स्टेप क्या करूँगा मैं, 2 × a × b करूँगा और इनको जोड़ूंगा, इनका सम करूँगा, राइट। नॉर्मली आप अगर मैथ्स में करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे तो करोगे, Yes, sir. यस और नो, करेक्ट। अब अगर ये काम मुझे अपने कोड में कराना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहला रूल क्या है, आइडेंटिफाई करना है हमें क्या, डेटा टाइप बताया था मैंने शायद पहली क्लास में। जो नहीं थे उनके लिए बता देता हूँ कि जब भी आपको किसी भी तरह का प्रोग्राम मिलता है या कोई भी आपको प्रॉब्लम मिलेगी, अभी हम सिर्फ डेटा टाइप को लेके चलेंगे, आगे जाके बहुत चीज़ें बढ़ेंगी, बट फॉर नाउ हमें आइडेंटिफाई करना है डेटा टाइप। कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 2. 2, राइट। एंड व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट? And इंट। तो सबसे पहला रूल जो है कि हमने भाई आइडेंटिफाई करना कितने वेरिएबल हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ट्राई टू रिलेट इट कि आप ये कोड लिखा जा रहा है, ठीक है, कंसोल पे लिखा जा रहा है। आप कोशिश करना, नहीं हो पाता है, बट फिर भी अगर नहीं होता तो हम तो देख ही रहे हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि 2 वेरिएबल हैं, a एंड b, राइट। दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। 2 वेरिएबल है, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया इनकी वैल्यू, इनका डेटा टाइप क्या है, इंट। तो यहाँ पे इंट a हो गया, इंट b। ये सेमी कॉलन एक तरीके से ये स्टेटमेंट कहता है, सेमी कॉलन की ये लाइन खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये हो गया, हमने पहली लाइन हमारी हो गई कि इंट a और इंट b हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया बेसिकली। इनकी वैल्यू भी हमने नहीं दी हुई है, ठीक। अब मुझे चाहिए क्या, a + b का होल स्क्वायर चाहिए, करेक्ट।
अब उसकी वैल्यू मुझे रिजल्ट जो है, ठीक है, वो मुझे चाहिए होगा, तो मुझे एक और वेरिएबल चाहिए होगा, हो गया क्या रिजल्ट। ओके, फिर मैं जाऊंगा, मैं रिजल्ट में क्या लिखूंगा, कुछ नहीं, मेन चीज़ है ही नहीं, ये जो इक्वेशन आपने लिखी हुई है ना, यही मैं इक्वेशन अपने कोड में लिख दूंगा जा करके, सेम एज इट इज़, दैट्स इट। ज़्यादा बड़ा हो गया भाई, तो छोटा करना पड़ेगा इसे, कहाँ गया। ठीक है, अब क्या करेगा प्रोग्राम, इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा, राइट, ऑटोमेटिकली, और आपको Yes. रिजल्ट में मिल जाएगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यू कैन प्रिंट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो मैंने अभी तक लिखा हुआ है, इतने में किसी को डाउट है क्या, पहले बताओ भाई, कि क्या हो लिख दिया, नहीं पल्ले पड़ा कुछ, क्या डिफाइन कर दिया, कैसे कर दिया, अगर है तो बताओ, और नहीं है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ, एक बार फिर से समझा देंगे क्या, मेरी स्क्रीन मतलब कॉल अभी कट गई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, शो नहीं कर रहा था कुछ भी अचानक, तो मुझे रिस्टार्ट करना पड़ा पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे निकालना था, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता है कि आप कैसे निकालोगे, बट अब देखो ये बात अलग है कि आपको ये मालूम होना चाहिए, ये इक्वेशन, ठीक है, कि a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज़ मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमने सबने पढ़ी हुई है। अब हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना था, तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा कि भाई a और b का होल स्क्वायर, प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास दो वेरिएबल हैं, उनके सम का मुझे स्क्वायर निकालना है, राइट। तो हमने आइडेंटिफाई किया क्या कि कितने वेरिएबल्स हैं, हमें मालूम चला दो वेरिएबल्स हैं, तो हमने पहले दो वेरिएबल डिफाइन किए यहाँ पे, a और b, आइडेंटिफाई किया कि उनका डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप उनका क्या है, अभी मतलब करने को डेसिमल भी कर सकते हो, हमने इंट ले लिया है कि भाई इंट टाइप का है, अभी हम इंट लेके चल रहे हैं ताकि हमें सिक्वेंशियल स्टेटमेंट चलते कैसे हैं वो समझ में आए, ठीक है। तो हमारे पास a और b दो वेरिएबल हो गए जिनका डेटा टाइप हमने इंट लिया हुआ है, ऑल राइट। अब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो इनका जो आउटपुट आएगा वो भी तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए मैंने एक तीसरा वेरिएबल ले लिया है रिजल्ट, जो क्या वैल्यू होल्ड करेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो हमने पढ़ा था, वेरिएबल विच होल्ड्स द वैल्यू, ये रिजल्ट a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू को होल्ड करेगा। तो अगर आप देखो कि जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश और मैथ्स का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, ये कहना मेरा सही है। प्रोग्रामिंग कहाँ पे आ जाती है कि आपको ये बस मालूम होना चाहिए कि डेटा टाइप कौन सा है, ठीक है, हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है, और कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें, जैसे कि हमने पढ़ी थी जावा में किसी भी प्रोग्राम के लिए दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हैं, क्या है, कोई बता पाएगा, एनीवन कैन, मैंने लिख दिया है छोटा सा, बताओ, जूम करता हूँ, क्लास एंड मेन फंक्शन। मेन फंक्शन। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये कहाँ जाएगी, मेन फंक्शन में, फंक्शन और मेन फंक्शन कहाँ पड़ा हुआ है आपका, क्लास में। क्लास। अब मैं आता हूँ स्लाइड पे, यहाँ पे हमारी क्लास क्या है, टेस्ट। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, अगर जिनके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, तो वो साथ साथ लिखते चलें और अपने दिमाग को कहते रहें कि हाँ ये चीज़ है, कि सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगा क्लास, ठीक है, इसमें पता नहीं क्या इशू हो गया तो छोटा आ रहा है, क्लास, ठीक है, क्लास इज टेस्ट क्लास, और ये इसका क्या हुआ, जो मैंने लिखा ये क्या है, कोई बता सकता है, दैट इज व्हाट इट इज, बॉडी, क्लास की बॉडी है, बॉडी ऑफ द क्लास। ओके, वी हैव अ मेथड, मेन मेथड, हाउ वी डिफाइन इट, ये भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था कि स्टैटिक क्यों होता है, क्या होता है, बट अभी के लिए इस पर तो जोर नहीं देंगे हम, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं क्या, मेथड आर्गुमेंट, ये हमारा मेन फंक्शन डिफाइन होता है, इसके भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो जब हम ऊप्स कंसेप्ट पढ़ेंगे वहाँ पे हम समझेंगे इन चीज़ों को, बट फॉर नाउ
This is a class, that's a body of class, that's the main method, that's the body of the main method. बस ये चीज़ें आपको हर एक फॉर नाउ अभी के लिए आपको ये चीज़ दिमाग में फिट करानी ही करानी है, ठीक है, कि ये होगा ही होगा. ऑल राइट. नाउ द पॉइंट इज़ कि ये जो हमने वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं वो हमने कहाँ डिफाइन करने हैं, क्या यहाँ करने हैं या मेन मेथड के अंदर करने हैं. आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है. फॉर नाउ सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं चीज़ें सब कुछ मेन मेथड में लिख रहा हूँ, ठीक है. धीरे धीरे ऑप्टिमाइजेशन पे हम जाएंगे, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया क्या, इंट ए, इंट बी एंड इंट रिजल्ट. किसी को कोई डाउट हो कि यार ये क्या लिखे जा रहे हैं तो मुझे बताते जाना, ठीक है. दैट्स द थिंग व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिफाइंड और डिक्लेयर्ड, ठीक है. मैंने डिक्लेरेशन में और इनिशियलाइजेशन में डिफरेंस बताया था आप लोग को. अगर इंट ए मैं ऐसे लिख के छोड़ रहा हूँ दैट इज़ डिक्लेरेशन, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू दे दूँ यहाँ पे दैट इज़ द इनिशियलाइजेशन. बताया था ना कि बच्चा पैदा होता है तो डिक्लेयर होता है, जब बच्चे का नामकरण होता है तो वो इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है. फिर मेरे को यहाँ पे रिजल्ट में अपनी सेम चीज़ डालनी है, ए स्क्वायर प्लस, अच्छा देखो जावा में ऐसे करोगे आप, ए इंटू ए, मतलब प्रोग्रामिंग में बी इंटू बी, राइट, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, सेमी कॉलन टेल्स कि भाई ये लाइन ख़त्म हो गई है. आप नहीं लगाओगे तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा, ठीक है. और ये मैंने बताया था कि सिस्टम एक क्लास है, आप लोग को किसी को याद हो तो आउट उसमें एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है और प्रिंट एलन उसका एक मेथड है जो कि नई लाइन में आपको डेटा प्रिंट करके देता है. कुछ चीज़ें प्रीडिफाइंड हैं जो आपको करते करते प्रैक्टिस में आ जाएंगी और मतलब मैं समझा चुका हूँ, बाद में इसको हम दोबारा रिवीजन में ले सकते हैं, ठीक है. अभी के लिए मैं इतना चाहता हूँ कि आप लोग को सिंपल प्रोग्राम लिखना आ जाए, ठीक है. इतनी चीज़ में किसी को पंगा, कोई प्रॉब्लम कि भाई क्या लिखा है, No, क्या नहीं sir. लिखा है, क्लियर नो है सर. एवरीवन. Yes, sir. तो मैं अब चलता हूँ इस स्लाइड पे. अगर सबको लास्ट प्रोग्राम क्लियर था, ठीक है, तो लेट मी टेक आउट द नेम नाउ. वो मुझे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बताएगा. लेट्स ओके, गुलशन कैन यू प्लीज़ टेल मी कि ये लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है. कोड रीड कर सकते हो क्या आप? आर यू देयर गुलशन? Yes, sir. या प्लीज़ एक बार आप रीड करो कोड को और बताओ कि क्या हो रहा है, ताकि और हम लोग भी समझेंगे उस चीज़ को. व्हाट इज़ द क्लास टेस्ट, ये लाइन क्या कहती है? हेलो, क्या नेट का इशू है क्या भाई? आप लोग को आवाज़ आ रही मेरी क्या? हेलो, Yes, sir. आ रही है. अच्छा गुलशन आप म्यूट पे हो. ठीक है, विवेक. विवेक, Wait, I can hear music but I can't hear you. Okay. Anyone else? अब मैं नाम नहीं लूँगा. Anyone who wants to explain? Pranoti, Palak, Isha. Sir, am I audible? Yes, Yes, Vivek. sir. Yeah, Vivek, you are audible. Yeah. Can you show me the code, sir? Yeah. Hmm. Sir, the C value will be 300. That's No, no, what no. you are asking. आपने मेरा इसका Okay. मतलब कि प्रॉब्लम सुना नहीं. मैंने बोला है कि आपको लाइन बाय लाइन रीड करके बताना है कि क्लास ये लाइन क्या Okay. कर रही है, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन क्या कर रही है. ओके. Okay. Sir, so the first line class test. We have the class of with the name of test. The class value is test. ठीक Okay. है, हमने एक क्लास Then डिफाइन की है जिसका नाम टेस्ट है. test. Yeah. ओके, ग्रेट. Sir, public static void main. Sir, it is basically the function.
like the function which we described before writing the code. Public means like the JVM machine open ठीक है, उसको छोड़ is देते not हैं, the उसको छोड़ package. देते हैं, वो उतना नहीं, Okay. बस मेन फंक्शन डिफाइन किया हमने, दैट इज इनफ फॉर नाउ. Yeah. ठीक है. Okay. Then we are giving the integer. We are selecting the data type for the ABC, defining the ABC with integer value. Then we are giving the variable of a equals to 100, b equals to 200, Okay, and then wait a minute, I will stop you here. This line int a okay. comma b comma c with semicolon, and the another line a is equal to 200, b is equal to 200. What's the difference between these two lines? Uh, in this, we are in the first line we are declaring the ABC at the integers, Mm-hmm. and in the second line that value we are giving the exact value of a and b. Like Yeah, in the the first line we are declaring it, and the second line we are initializing it. So guys, okay. we have to be very careful, actually careful, like if you are declaring a variable, है ना, and you when you are initializing it, जब कोड करोगे ना, you will get to realize कि हाँ, that thing is very important, कि कब कहाँ declare करना है, कब initialize करना है. ठीक है. Okay. Okay. Now this one. Then we are using the formula, like giving the formula Mm-hmm. for We are c equals to a b. summing a and Yeah. b and holding the value Summing. in the c. Yeah. ठीक है. And then giving the last program for printing it out. Printing it, And right. then we are closing. Then we are closing the class. Yeah, we are closing the main Sir, function, then we are closing the class. sir, I just want to ask something. Yes. Like in the system.out.println, Mhm. plus c means adding the extra variable. Okay, plus is a operator. ठीक है. Now it depends कि आप use कैसे कर रहे हो. The question you have asked comes to the operator. Let's say, let me tell you one thing. I have 100. My screen. Let me reshare again. Wait a minute. Yeah, you are writing 100. If I write 100 plus 100, what would the value? 200. 200. Now if I replace this like this 100, or let me do this is 100 and I'm writing it like this, what will be the value here? अब यहाँ पे डाउट हुआ. We will get an error. Depends, not exactly. Yes, because priority if integer or character. Not really, actually. It depends on the operation, what we are doing. If you do it like this, let me show you now. मैं जाता हूँ अपने कहाँ पे, लर्निंग वाले पे ही रहता हूँ. ठीक है. ठीक है, मैं यहाँ पे एस आउट में लिख करके मैं 100 लिख देता हूँ. एरर तो नहीं आ रही है, राइट? क्यों? क्योंकि ये जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये को मैं आगे पढ़ाऊँगा, बस आपने पूछा बता देता हूँ. दिस इज़ कॉन्केटेनेशन, कि आप कॉन्केट कर रहे हो. स्ट्रिंग में आता है कॉन्केटेनेशन. अगर आप a प्लस 100 लिख रहे हो तो ये a के साथ 100 लिख देगा. लेट मी शो यू. एक सेकंड, तो स्ट्रिंग के साथ है. वेट अ मिनट. 197 देख रहे हो आप, a के साथ 100 से लिख दिया है. वो एक्चुअली कैरेक्टर था, तो कैरेक्टर तो इसका वैल्यू ले लेगा, तो वो इसका सम दे देगा इन एक्चुअल. ठीक है. नाउ लेट मी डू समथिंग लाइक दिस. मेरे को यहाँ पे एक और मैं ए लिख देता हूँ, मैं पे स्ट्रिंग कर देता हूँ. लेट मी डू इट कॉपी पेस्ट. कैरेक्टर वाला छोड़ देते हैं क्योंकि कैरेक्टर में इसका वैल्यू का है, अदरवाइज यू गाइस विल कंफ्यूज. इसमें हो गया. ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ ज़रा इसके साथ. Okay, can you see the output guys here? Yes, sir. हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, a क्या है यहाँ पे, डेटा टाइप क्या है, का स्ट्रिंग है, करेक्ट.
जब हम स्ट्रिंग के साथ प्लस यूज़ करते हैं, ये प्लस ऑपरेटर, ये सम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो विवेक का क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो प्लस लिखा हुआ, कहाँ गया मेरा स्लाइड, ये रहा, ये क्या है, सम इज द स्ट्रिंग, राइट विवेक, Yes, आर sir. देयर? Here sum is string and we are doing the concatenation. There is a thing word in Java or in any language कि आप उसके साथ कॉन्केट कर रहे हो, दैट कम्स हेयर। सो आप देखोगे वैल्यू ए के साथ 100 प्रिंट हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पे 100 कर दूँ, इट विल गिव अस सम, द सेम ऑपरेटर विल गिव अस द सम, राइट। तो ये Yes, sir. कॉन्केटेशन का, जब हम स्ट्रिंग क्लास के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको सीखेंगे। विवेक ने पूछा, दैट्स वाई आई टोल्ड दिस। यार आप लोग चले जाते हो क्या बीच में लैपटॉप छोड़ करके? ओके सर, थैंक नो यू। सर। अच्छा ठीक है। तो आज का ये प्रोग्राम है आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग को करना है, आप लोग लिख लो 2 नंबरों को स्वैप करने का प्रोग्राम। अच्छा लॉजिक पता है 2 नंबरों को स्वैप करने मतलब क्या हुआ? यस सर। अच्छा एक्सप्लेन कर दो बाकी सबके लिए जिनको नहीं पता है, या फिर सबको पता है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। एनीवन हु डजंट नो? Should I explain? या या प्लीज। In swapping, suppose A is equal to 10 and B is equal to 20, then we want wait, to let me make let me write down for others as well. Yeah, if A is equal to 10, okay, B is equal to 20, B is equal to 20, then we have to write a logic through our program to make B is equal to 10 and A is equal to 20. ठीक है गाइस, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इनपुट ये है, यस ठीक है, सर। और आउटपुट आपका नीचे वाला है, मतलब कि अदला बदली करनी है, स्वैप, ओके। दूसरे पे आते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। आप लोगों ने मैथ तो पढ़ी है, Yes sir. P इंटू आर इंटू टी बाई 100 करके होता है सिंपल इंटरेस्ट, गोल Yeah, का yeah. मुझे तो याद आ रहा है, बाई 100 होता है, ठीक है। तो वो एक, आपको वैल्यू कुछ भी ले लेनी है, टाइम की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल अमाउंट की, और आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना है। तो इन शॉर्ट कि आपका जो लॉजिक जाएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट टू हेल्प यू गाइस, कि आउटपुट जो होगा वो आपका डिपेंड करेगा आपके पी पे, आपके आर पे, और आपके टाइम पे, विच दिख तो रहा है, लेट मी, ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, आई थिंक यही होता है, कर देख लेना एक बारी, ठीक है। ये आउटपुट है इसका, आपको ये लॉजिक परफॉर्म कराना है, ठीक है। अब कितने वेरिएबल लेने हैं आपको, ये खुद देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे मेरे पास आउटपुट है, पी है, आर है, टी है। ये आप लोग कल मुझे दिखाना कोड करके, जो कॉपी पेन पे करेगा दे कैन क्लिक द फोटो, है ना, और सेंड मी ऑन ईमेल, और कैसे भी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। और जिनके पास कोड है दे विल शेयर द स्क्रीन, देन वी विल डिस्कस। थर्ड प्रोग्राम इज द राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अगर एक रेक्टेंगल है तो उसकी 2 साइडें होंगी, ए बी, एरिया ए इंटू बी, ठीक है। पेरीमीटर के लिए आई थिंक प्रोग्राम मेथड क्या रहता है, पेरीमीटर अगर मुझे निकालना है उसका, तो ए प्लस बी, राइट, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2L plus B. 2L भी, हाँ 2 टाइम्स हो जाएगा भाई। चौथे को अभी मैं होल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है, पहले इन तीनों को ही आपको करके मुझे कल दिखाना है। सो एनीवन हैज़ एनी डाउट, या कोई कि हम कैसे करेंगे, या फिर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, अभी बता दो। नो सर। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ थी कि ये जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें स्वैप करने का या सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, दीज आर नॉर्मली मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो इनको जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग में वर्ल्ड में कहते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक चलने वाले, राइट। तो यहाँ पे अभी जो हमने 2 प्रोग्राम देखे, एक तो ये वाला, इसमें क्या हो रहा था, एक के बाद एक चीज़ें, हम ए को पहले वैल्यू दी, बी को दी, फिर सी को दी, और प्रिंट कराया, राइट। Yes, sir. इससे पहले हमने यहाँ पे जो एक किया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला हमने, सीक्वेंशियल था, ए लिया, बी लिया, रिजल्ट लिया, उसकी वैल्यू दे दी, निकल गया। यहाँ पे कोई लॉजिक ऐसा नहीं था कि हमें इफ़ एल्स या लूपिंग आई हो, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑल राइट। टुमारो वी विल बी टचिंग टू दी
डिसीजन मेकिंग, इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स। मैं चाह रहा था कि मैं आज टच कर लूँ, बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि हाँ हमें एक बहुत बेसिक चीज़ लिखनी आ गई है। ठीक है, आप क्लास लिख लेते हो, आप मेन फंक्शन लिख लेते हो, आप उस मेन फंक्शन के अंदर अपने लॉजिक डाल लेते हो। ठीक है।